10 important environment micro themes that we cannot ignore for 2026. Pollution में भी सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? सोर्सेज. नाउ यू नो दैट एयर पोल्यूशन इज सो मच इनटू न्यूज, राइट? तो उस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है ना, आके गया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया. 2025 में भी क्वेश्चन आया है. सो अगर ये 10 टॉपिक भी आप एनवायरमेंट से करके जाओ तो आई एम श्योर कि आपके एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन तो आप हिट कर पाओगे, एंड दैट मच इज वेरी पॉसिबल. हेलो एवरीवन, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी 10 important environment micro themes that we cannot ignore for 2026. All right, so these are going to be some topics which we are going to focus mainly. Environment एक ऐसा topic है जो आजकल since recent years, since 5 years we can say, जब से forest service has been included, has been in focus a lot. And environment is such a weak subject कि बहुत ही अलग अलग segment से questions पूछे जाते हैं. So we cannot even get an idea that कौन से species के बारे में पूछा जाएगा, कौन से environment act के बारे में पूछा जाएगा, anything random that they can ask out. So, but when we have analyzed 5 to 6 years UPSC question papers, we get a little bit of idea that what themes that they are discussing, they are focusing about, right? So let's see that how many questions do UPSC ask. So on an average we can see 2017 में 15 questions पूछे गए हैं, 2018 12, 2019 में 19 questions पूछे गए हैं, 2024 में 14 questions, 2025 में 10 questions. Okay, so the amount of question in 2025 is less, but if we see कि 2024 तक 14 questions, so on an average अगर हम consider करें तो 14 to 15 questions are being asked every year. Or in 15 questions mein, if you see that there are almost 10 questions which are solvable. Okay, solvable on the basis of basic concepts, on the basis of current affairs, all of these things. Okay, तो अगर आपके concepts अच्छे हैं तो solve हो जाएंगे. But the other questions are little bit on the tougher side because बहुत ही अलग अलग चीजों से पूछे जाता है वो. ओके, सो वी विल सी कि कौन से माइक्रो थीम्स पे हमें फोकस करना है एंड विच इज पॉसिबल फॉर अस टू ऑल्सो लर्न. ओके, तो वो थीम्स हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड विल ट्राई टू स्टडी दोज थीम्स. ऑलराइट, सो द फर्स्ट thing that we are going to see the micro theme structure, the data on that. So we can see कि ये सारे micro themes है हमारे सामने, जो भी micro themes है. So these themes is which in which areas UPSC asks questions. So starting from pollution, national parks, ecological theory, fuels and biofertilizer, UNFCCC के बारे में पूछता है, acid rain के बारे में पूछता है, rivers, lakes, farming techniques, forest vegetation, all of these things, right? So these are the एन नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स. अभी इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द PYQs वी हैव सॉर्टेड आउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स जो आप पढ़ो. ऑलराइट, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम का जो ये आगे वाला सेगमेंट है, दिस इज द टेबल. ओके, सो इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द माइक्रो थीम, ये आपको सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे. So the first micro theme that we have identified is very very important is pollution. ओके, अभी पोल्यूशन में भी सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? सोर्सेज. नाउ यू नो दैट एयर पोल्यूशन इज सो मच इनटू न्यूज, राइट? तो उस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है ना, आके गया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया. 2025 में भी क्वेश्चन आया है. सो वी नो दैट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आर ऑलवेज हॉट टॉपिक्स, एंड उसके ऊपर सिर्फ पोल्यूशन नहीं कि पोल्यूशन के हाउ इज दिस पोल्यूशन गेटिंग कॉज, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसा नहीं पूछा जाता. तो उसके सोर्सेस पूछे जाते हैं. दे आर आस्किंग यू मोर अबाउट द सोर्सेस ऑल्सो. All right, so we have to focus pollution. We also have to focus sources of these pollution. Again, सारे standard books में आपको इनके बारे में information मिलेगी. So it is easy to read about pollution and its sources. Make sure that you do not ignore this topic. Okay, यहाँ पे आप देखोगे 2024 में there are 4 questions. So 4 questions is like huge amount. 8 marks मिलते हैं, तो उसमें से we cannot afford losing those 8 marks. 2025 में 2 questions, 2023 में 2 questions, 2022 में 1 question, 21 में again 4 questions. So almost alternate years it is asking you more than 3 to 4 questions, right? तो इसका मतलब है 2026 में भी questions आएंगे, pollution से आएंगे, they will ask you more about the sources and it is easy to learn. All right, so let's just focus on pollution. That should be your first priority in environment. Okay, second thing, again pollution, but यहाँ पे हम sources नहीं देख रहे. Now they are asking, now understand, when I say pollution,
तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते पोल्यूशन के बारे में, एंड देन यू कैन नॉट सी कि हाँ मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ी है. आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. सो पोल्यूशन वन इज सोर्सेज दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट. नाउ सोर्सेज इज समथिंग जो थोड़े बहुत तो आपको रटना पड़ेगा. सिमिलरली पोल्यूशन और इम्पैक्ट एंड रेमिडिएशन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. ऑलराइट. सो यहाँ पे हम देखेंगे 2021 में, 22 में, 23 में, 25 में क्वेश्चन पूछा गया. तो देर इज अगेन अ बिगर चांस कि 2026 में भी पूछा जाए. So when you are reading pollution, you should read two segments very nicely. One is sources and other is impact and remediation. All right. Moving on to our next. Now this is again बहुत ज्यादा टफ है टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्पीसीज के बारे में पूछा जाएगा. बट नाउ वी हैव सॉर्टेड आउट दैट कहाँ पे फोकस कर रहा है यूपीएससी. नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट जैसे मैंने बोला आपको कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पर पोल्यूशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स अंडरस्टैंड स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट. स्पीसीज पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बट स्पीसीज पे वो कहाँ पे फोकस कर रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. वन, द फर्स्ट सेगमेंट इन अंडर स्पीशीज इज प्लांट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में भी क्वेश्चन है ऑन कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल्स. ओके, हाउ मेनी ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव स्पीशीज. तो दे आर आस्किंग अबाउट प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स. अगेन दिस इज नॉट अ बिग थिंग टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है, तो स्पीसीज देख रहे हो तो प्लांट स्पीसीज प्लीज देखो अच्छे से. दोज विच आर नेटिव, दोज विच आर एक्सोटिक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. जो टॉपिक जो ज्यादा करंट अफेयर्स में है, घूम रहा है, दिख रहा है आपको कि बहुत इस प्लांट के बारे में या ट्री के बारे में चर्चा हो रही है, तो रीड दैट. ओके. ऑल्सो दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इजी टू सॉल्व. तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप, अगर आपकी इकोलॉजिकल थ्योरी जो आपका बेस है, कंसेप्ट है, वो अगर अच्छे हो तो आपको ये भी सॉल्व करने को इजी जाता है. So concepts is going to be the basic thing that you have to do. Then one is plants. Then is species and their habitat. What do they ask in species? If they are asking, one is about plants. The other thing that they're asking about species is their habitat. कि कैसा होता है habitat एक species का. So that is what they are asking. अभी यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखो, 2019 में 3 क्वेश्चन है, 2022 में 2 क्वेश्चन है, 2024 में 1 क्वेश्चन है. So the amount of questions are present since 5 to 6 years. That means it makes the habitat also important. All right. Next is species into peculiar features and exotic और invasive. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से exotic है, कौन से invasive है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो. इफ यू सी 2023 में 4 क्वेश्चंस पूछे हैं. अभी ये 4 क्वेश्चंस में से अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वेश्चंस जो है, this is some marsupials and again some question. So these were statement based, which was very easy to solve. This was the first time that they introduced this kind of question जिसमें उन्होंने some और only few ऐसी चीजें बहुत ज्यादा यूज की थी, but that were very easy to solve. Okay, so यूपीएससी स्पीसीज के बारे में पूछ रहा है, पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज पे. सो रीड अबाउट दोज एंड दे आर आल्सो कंसंट्रेटिंग अबाउट सम पेक्यूलियर फीचर्स, कुछ तो अलग फीचर. ऑलराइट, सी हियर 2018 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन, 24, 25 में क्वेश्चन. सो इट्स आस्किंग अ लॉट अबाउट स्पीसीज. अगेन इट इज अ वेरी वेग सब्जेक्ट, वेरी वेग टॉपिक टू रीड अबाउट, बट कॉन्सेंट्रेट वन विच इज इन न्यूज. ठीक है, जो न्यूज में स्पीसीज उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. एंड यहाँ पे तुम्हें रटना पड़ेगा बहुत सारे स्पीसीज के बारे में, बट इट्स फाइन बिकॉज अगर इतने क्वेश्चंस आ ही रहे हैं देन यू हैव टू गो थ्रू दोज. राइट, एंड मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली आप प्लांट्स के बारे में देखो, आप उनके हैबिटेट और एक्सोटिक स्पीसीज, दीज 3 सेगमेंट्स इफ यू कवर वेरी नाइसली यू आर गुड टू गो. यू विल हैव दोज कि हाँ यहाँ पे तो एटलीस्ट एलिमिनेशन से तो काम चल जाएगा, एंड यू वुड हैव एन आइडिया, बेसिक आइडिया हो जाएगा. ओके. नाउ द सिक्स्थ इज फ्लैगशिप स्पीसीज. ठीक है, बहुत ही इजी सेगमेंट है ये, बहुत ही इजी सेगमेंट. जस्ट सर्च द फ्लैगशिप स्पीशीज, उसके ऊपर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लस पीवाईक्यूज रिपीट करते हैं. फ्लैगशिप स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज पीवाईक्यूज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो जैसे महसीर पे आया था, ठीक है, लायन टेल मकाक पे आया था. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस. हियर यहाँ पे बटरफ्लाइज के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे भी बटरफ्लाइज के बारे में पूछा है. सो फ्लैगशिप स्पीशीज पे जो भी पीवाईक्यूज पूछे हैं, तो जस्ट रीड द ऑप्शंस, रीड मोर अबाउट द ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, बस ऑप्शंस देख के नहीं, तो ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ो, और वो रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है. सो दे ऑल्सो गिव यू हिंट इन द पीवाईक्यूज कि शायद इसके ऊपर अगले साल पूछा जाएगा सवाल. सो गो थ्रू 5 to 6 years क्वेश्चन पेपर, सी व्हाट काइंड ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज दे हैव आस्क्ड अबाउट इवन इन द ऑप्शंस, और उनके बारे में पढ़ लो. ओके.
बहुत कम स्पीसीज होते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज, जो न्यूज में होते हैं एक साल में, तो उनको आप पढ़ सकते हो आसानी से। ऑलराइट। सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज। एनवायरमेंट में अगर कुछ important होगा practically, so that is this international organization and how is it is working and the treaties out of it. So in the recent years we know कि climate change बहुत ज्यादा न्यूज में है, right? So UPSC loves to ask कि what is going on, what has been done in the recent year. बहुत पहले की treaties and organization, it is not asking, it is asking you very recent ones, since what has happened in the 3-4 years. So आप देखोगे यहाँ पे 2021 से 2024 questions are there, 2017 से 2023 तक questions हैं, okay, on organizations and on treaties as well. अगर आप अच्छे से उनको समझो, इन ईच बुक, इन एनी कोर बुक दैट यू आर रीडिंग, you will have a very good historical background about each treaty and each organization. उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो कि क्या लेटेस्ट ट्रीटीज उन्होंने किए हैं, ऑलराइट, एंड देन यू विल बी एबल टू टैकल दीज क्वेश्चंस। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, any year you pick up and there is a question from this, so why not let's be prepared for it. All right, so international organization and its treaties are going to be important with the perspective of environment and climate change. Okay, look here also 2010 में, 2016 में, 25 में तीन क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, नेचर सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक कब लॉन्च हुआ था, विच वन वाज लॉन्च, everything it has asked. So these treaties, these organizations are going to be important. All right. Then environmental acts. Now these are going to be environmental acts specific to Indian acts, not international acts. जो हमने पहला segment देखा, seventh important micro theme was international organization and the treaties. Now this is going to be Indian environmental acts and organizations. ठीक है? So much of infrastructure development is going on. Along with that, जो environmental organizations रहते हैं, NGOs रहते हैं, it is coming up acting against government. तो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, what is government doing against it, before it. So Environmental Protection Act के बारे में there will be a question. Wildlife Protection Act के बारे में there will be a question. Look here. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इवन इन द बिफोर इयर्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इट, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑलराइट, 2017 2022 यहाँ पे पॉलिसीज के ऊपर, 2019 2023 गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फ्रॉम आवर साइड, क्या पॉलिसीज ला रहा है, क्या एक्ट्स ला रहा है, ये पूछा जाता है। The ninth topic, which is again very tough to remember, but if you read national parks or if you study national parks according to states, कि हर एक स्टेट में, do not go कि अच्छा ये नेशनल पार्क है, वो कौन से स्टेट में, ये वाले वन से, ये नहीं, स्टेट में देखो कि ओके महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है या एनी अदर स्टेट, उसमें कितने हैं। First, remember the number of national parks that are present in each state, and then you remember the names. It's more easy to relate. ठीक है। अब ये नेशनल पार्क जो होते हैं वो यूजुअली रिवर्स के पास होते हैं, वेरी जोग्राफिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट। तो रिवर्स होती है तो विच नेशनल पार्क पासेस थ्रू विच रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। दिस इज अगेन अ टफर थिंग टू डू, बट इफ यू आर गुड विथ मैप्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेशनल पार्क्स करने, रिवर्स के ऊपर उसके इर्द गिर्द जो रिवर्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ज्योग्राफी सेगमेंट एज वेल। तो मेक श्योर दैट यू स्टडी नेशनल पार्क्स एंड रिवर्स। क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इज मोर, सो वी हैव टू। ओके, फ्यूल्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स, यहाँ पे इफ यू सी 2013 से 2025 तक, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन से कि रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछा जाता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज अगेन अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक ऑल्सो, उसमें भी कवर करेंगे हम, बट फ्यूल्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बायोफ्यूल्स, ओके, हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी, हाइड्रोजन रिच फ्यूल, शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स, यूजफुलनेस क्या है, तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है, फ्यूल्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ सेगमेंट दैट नो वन विल टेल यू कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पर आते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लो। All right. So the 10th important, the last important micro theme is fuels and biofertilizers. Easy enough. Okay. इनको अगर अगर environment tough जा रहा है तो please NCERT पढ़ लो. First thing that you need to understand is NCERT पढ़ो. NCERT जो 12th standard की biology की NCERT उसके last 3 to 4 chapters. Read those and you're done with it. आपके basic वहां पे बहुत अच्छे हो जाएंगे. Then come to these 10 micro themes where you can read. Now, if you're done with
done with environment and you want to revise and you don't understand कि कौन से important topics मैं पहले revise करूँ, then the less important, focus on these 10 important micro themes. All right. पहले जो 6-7 है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनवायरमेंटल एक्ट्स दे आर गोइंग टू आस्क यू, नो डाउट इन इट. फ्यूल्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स समथिंग दैट दे आर आस्किंग वेरी रिगरसली. ठीक है, बहुत ही बीच में से ही वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट वो बहुत टफ नहीं उसको कवर करना. बहुत कम चीजें हैं जो उस पर रिसर्च हो रहा है या जो जिसके बारे में कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, तो वो पढ़ना इजी हो जाएगा. ऑलराइट. So this is a summary of the 10 important micro themes that I presented in front of you. Pollution, sources and impact remediation. Species में plants पे focus करो, उनके habitat पे focus करो, and the exotic and invasive along with flagship species, which is easy to remember. Flagship species. International organization and treaties, environmental acts and organization, national parks and remember the rivers out of it, and fuels and biofertilizers. ओके. सो अगर ये 10 टॉपिक भी आप एनवायरमेंट से करके जाओ तो आई एम श्योर कि आपके एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन तो आप हिट कर पाओगे, एंड दैट मच इज वेरी पॉसिबल. All right, at least from those 15 questions that you are going to get in UPSC prelims, at least 8 to 10 questions are solvable. And if you do these, तो उसमें से ही questions पूछे जाएंगे. So we will be ready for such questions. All right. So all the best and make sure that you do revise from these important topics.